introduce me? definitely like to introduce you. It will be an honor. तो काफी लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो प्रेरणा मैम हैज बीन वर्किंग विथ लॉन्ग टाइम विथ अस स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज में। तो लाइफ में क्या होता है ना कि वी ऑल नीड हेल्प बट वी डू नॉट नो हाउ टू और व्हेन टू सीक। सो प्रेरणा मैम हैज बीन हेल्पिंग लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, businessman, and she has been helping me as well, right? So deal with a lot of things. So and she has taken few sessions, I believe, on the MET Club as well, and so we are very happy to have her on the platform. And I hope this session is very very specific session. It is very close to my heart that we are all marine engineers, and some of us are entrepreneurs. Some of us are 6 month sailor and 6 month entrepreneurs. So how do you deal with stress in your relationships with spouses, with wives, with girlfriends, even when you're on board or you are handling entrepreneurship? So this session is on this topic, and I hope after 1 hour we'll learn something and we'll take that with us. On that note, I welcome Prerna ma'am once again. Thank you, ma'am. Thank you so much. I think there are a few people who might have joined the last session where I talked specifically about relationships, because I mean it's really, really different from other marriages, which is seen where partners live together. But in this profession, you have to leave your Ma'am, can family, you your can you can you spouse. start from the beginning the slide, because the whole thing is visible. I will share my Okay, okay. slide, but I am giving you a preview of Okay, what okay, I'll be okay, discussing today. okay. Yeah. So I mean, it's a really a different task altogether to maintain your relationship, because most of us, I think most of you, live away from your spouses, and that too not for like small period of time, but for a long period of time. And also there is no connection also, like you cannot be in constant touch with them mostly. The situation, because you are in the ocean and you are taking care of the ship, right? So there are a lot of responsibilities, lots of lives are at stake. तो आपका ऐसा काम नहीं है कि आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं एंड यू जस्ट डूइंग योर वर्क एंड स्टिल यू आर इन टच विद योर फैमिली एंड यू आर गोइंग बैक होम फ्रॉम योर वर्क एंड सीइंग योर लव्ड वंस, जो कि ऐसा नहीं होता है आपके केस में. सो आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने मेरा लास्ट सेशन भी अटेंड किया होगा. आई मीन इट वाज फ्यू मंथ्स बैक, which was more inclined towards maintaining a relationship despite being, away from your family. So we have already discussed that too much into detail. So I think today we have a short span of time only, approximately an hour. So I would like to discuss about entrepreneurship, like, because you are doing your job for 6 months and then 6 months you're completely free, and you guys are earning a good amount of money, which obviously there are a lot of business opportunities which you people get, a lot of times. And कई बारी आप सोचते हो कि ठीक है, लेट मी स्टार्ट दिस जर्नी, entrepreneurship journey, and sometimes you feel like कि नहीं, maybe this is not the right time, or maybe this is not the right opportunity, और maybe कुछ एक disbelief भी रहता है खुद से कि क्या मैं ये कर भी पाऊंगा. Maybe I am good with marine engineering, but I may not be good with entrepreneurship. And also there are a lot of investments that is involved. So today we will be discussing about all of these things, right, step by step. And if you have any question, you want to say anything, you want to share your experience, so most welcome. We will do that all throughout the session. But before that, I would like to know how many of you are already into some kind of a business or some kind of entrepreneurship. How many of you? You can raise your hand or you can unmute and tell me. How many of you? Hmm. Okay, it's Pratik. It's we all know he's into business. Who else? Negative, ma'am. Negative side. We not yet any side of business. Okay, you don't do any business. Got it. लेकिन आप में से ऐसे कितने हैं जो
एक बिजनेस करना चाहते हैं, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, और उनके माइंड में बहुत समय से ऐसा है कि वो कुछ शुरुआत करें, बट कहीं ना कहीं उनको या कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, या कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है अच्छा कमा तो रहे हैं, बिजनेस में कितना रिस्क है, राइट? कहीं आजकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई हैं, जो सारी सिचुएशंस चेंज हो गई हैं, स्पेशली आफ्टर जीएसटी, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, तो पुराने बिज़नेसेस ही बहुत मुश्किल से सस्टेन कर पा रहे हैं। तो आज की डेट में एक नए बिज़नेस की शुरुआत करना, मेबी हम 6 महीने तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँगे, बट वो 6 महीने कहाँ जाएँगे जब आप वर्किंग नहीं होंगे? लाइक जब आप बिज़नेस पे ना दे कर के आप फुल टाइम अपने प्रोफ़ेशन में होंगे, मरीन इंजीनियरिंग में होंगे, राइट? तो कितने लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टार्ट? हाँ निखिल। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। रवि, आप करना चाहते हैं? ओके। कौन है जो स्टार्ट करना चाहते हैं? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? भाई ओके। लोग अपना वीडियो खोल लो यार, सब लोग, मजा नहीं आता। जितने लोग खोल सकते हैं अपना खोल लो। इतना क्या शर्माना है यार, मरीन इंजीनियर, सो किस बात की शर्म है? कपड़ा पहनने तो आप लोग ऑन कर लेना वीडियो। अगर वैसा कुछ है तो मत on। ठीक है। जी। Yes, ma'am. तो I would like I am working on a concept and I would like to go ahead with that. So I am looking after the policies which Indian government is coming up. So I am working on it. very good. So, very good. Like I mean, it depends from person to person, right? आपकी बहुत सारी personality, competitive skills, आपकी knowledge, आप जो भी business start करना चाहते हैं उससे related आपकी कितनी knowledge है, वो सब count होता है. So let's begin with today's session. So I'll share my screen. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जब हम बात करते हैं बिजनेस की, राइट? तो हमारा विजन क्या है? एज इन विजन को अगर हम डिफाइन करें, तो जो हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, व्हाई डू वी वांट टू स्टार्ट इट? क्या मिलेगा हमें ऐसा? पैसे की बात करें तो वो तो हम ऑलरेडी कमा रहे हैं। क्या हो सकता है हम भी 3 लाख्स पर मंथ कमा रहे हैं। अगर हम उसको एक अच्छे बिज़नेस में लगाएँ, राइट? एक अच्छे आइडिया में लगाएँ, तो क्या हम इससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? राइट? मनी इज़ द मोटिव, और योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लाइक यू थिंक you are business minded, right? Or is there a very good opportunity, which you think you can go into? So सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए है, राइट, एंड हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि अगर हमें ये पता होगा तो हमारी जर्नी जो है ना, उसमें जितने मर्जी चैलेंजेस आए, जो भी उसके अंदर सिचुएशंस आए, वी विल बी एबल टू डील विद इट, राइट? सो आवर वाई शुड बी क्लियर. सो आई वुड लाइक टू नो कि अगर आप लोग जॉब के साथ साथ एक बिजनेस करना चाहते हैं तो प्राइमरी रीजन उसका क्या हो सकता है? Is it out of passion? It is out of, giving back to the people? ऐसा क्या विजन है, ऐसा क्या एम है, और ये सिर्फ मनी कमाने का एक जरिया है? आई वुड लाइक टू नो किस लिए हम बिजनेस करना चाह रहे हैं. लाइक सी, इट कैन सी, अगर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन देर आर ओनली फ्यू पीपल who want to start a business and they are working on it, तो वो बीच बीच में, you can say, you can speak. इससे क्या होगा, आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी, राइट? आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी, आपके बिजनेस में क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम लाइफ कोचिंग आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई ऑल्सो डू बिजनेस कोचिंग. So you guys can discuss with me. I have my own company, so I am in a good place to, guide you if you're starting a business. So anyone would like to say anything? हाँ मैम, आई वुड शेयर। सर आप शेयर कर रहे हैं क्या? प्रतीक सर आप शेयर कर रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ शेयर नहीं करते, मैं तुम्हारे ही ऑन करने वाला था, तुम्हारे बारे में बता रहा था, क्योंकि तुम्हारे Okay. काफी बैचमेट्स हैं, हमको तुम्हारे प्लान्स पता चलते रहते हैं, अयोध्या वाले। Okay. So I would like to know, जो बताना चाह रहे हैं, what's your name?
My name is Khemchand Khatri. Okay. I'm a marine engineer, sailing currently as chief engineer. But over the, I would like to share one of my idea. Like currently, over the years, when I started my journey as a marine engineer, so I've seen how the environment on board it affects our inner well-being, our personal life, as well as our over the year how it affects our family life. So I have seen how the if we are working on our well-being, mental well-being, then we can evolve as an individual, and at the same time it will help to balance our material as well as emotional or our family life. So somewhere you have to anchor yourself, your inner self, so that you are balanced, because the Exactly. environment which you are bringing from ship should not be reflecting or should not have its impression on your home or in your family members. So I have been meditating from years, and I have found that meditation has helped me and not bringing that environment, and even making sure that the environment on board which was prevailing before I joined has changed in due course of time with those meditative practices or some detox practices which I have been doing. And with over the years I've seen that the shipping companies and the IMO is coming up with an initiative like mental well-being of seafarers, where I've seen many psychologists and very many Western organizations who have formed NGOs like mental well-being groups. They are partnering with shipping companies in India and other organizations for providing the psychological first aid. But I think if you provide the psychological first aid to a person who is going into that situation or who has already gone into that situation, so I think it's a better time to whatever I have learned and I have felt to help my fellow seafarers to have few tools which will not allow them to go into that situation where they have to go for that to connect with psychologist and to come out of that situation where they feel I am isolated, or have people have started having pity on them and they feel very irritated. So this is the brief idea I'm working on it, so that I can further take it ahead. Like this was all. Like still, maybe I'm not able to put Amazing. it in a better way, but I'm still working on it. अमेजिंग सी इससे हमारे को ये जो कॉन्वर्सेशन हुई इससे हमें 2-3 चीज़ें पता लगी। सी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही होल्ड्स ऑफ मरीन। तो जितनी सिचुएशन को ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है इन्होंने, तो ही इज़ सो एक तरह से ही जो प्रोडक्ट ये बनाना चाह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट द प्रोडक्ट इज़ एग्ज़ैक्टली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और वो मरीन इंजीनियर्स तो के लिए बना रहे हैं। तो जो इनका कस्टमर है, राइट? ये उसकी सिचुएशन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुके हैं, राइट? सो ही अंडरस्टैंड द कस्टमर रियली वेल एंड इसमें हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ गिविंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है इनके बिज़नेस आइडिया में, राइट? तो जिससे हमें क्या पता लगता है दैट विजन इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग कि जो अल्टीमेट एम है दैट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड उसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस इन फ्यूचर बहुत सारे जो एक अपडेट्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो विद टाइम ये कर पाएँगे बिकॉज़ जैसे-जैसे मरीन इंजीनियरिंग में मतलब आपकी जो प्रोफ़ेशन है उसके अंदर जैसे-जैसे चेंजेस आएँगे, ही विल बी एबल टू अडैप्ट प्रीटी वेल अकॉर्डिंग टू दैट। सो आई बिलीव दैट विज़न जो है वो इनका प्रीटी क्लियर है। राइट? हाउ जो पार्ट है, जो हाउ पार्ट है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट जो विज़न का पार्ट है, जो मैंने व्हाय बोला था, विज़न मीन्स व्हाय आर वी डूइंग इट, राइट? तो वो एक हमारे को उसमें क्लैरिटी मिली, राइट? सो विज़न इज़ समथिंग कि जिसमें हम आज का नहीं, हम फ्यूचर का सोचते हैं, राइट? वी थिंक अबाउट व्हाट वी आर ब्रिंगिंग अबाउट फ्रॉम आवर स्टेप्स व्हिच वी आर टेकिंग, राइट? सो मूविंग अहेड, सी विजन इज कि हमें क्या करना है। अब हम बात करते हैं हाउ, जिसमें हम प्लान करते हैं, राइट? वी हैव फ्यू थिंग्स, फॉर एग्जांपल आपकी जो प्लानिंग है वो आपके तब हो सकती है जब आप ऑलरेडी शिप पे हैं, बिकॉज सबसे पहले आपके माइंड में कुछ प्लान होगा, कुछ आपने चीज़ें वर्कआउट करी होगी। अब प्लानिंग में देर आर सो मेनी स्टेजेस, राइट? प्लानिंग इज नॉट जस्ट कि आपने प्लान किया ये करना एंड यू डू इट, नो।
प्लानिंग इज जिसके अंदर आप थोड़े से, सबसे पहले आप ये देखते हो कि हाउ मेनी फंड्स यू हैव, देन यू थिंक हाउ मच फंड्स यू नीड, राइट? आप ये देखते हो कि कितने फंड्स आपको चाहिए होंगे। दिस इज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट। सेकेंड इज रिसोर्सेज, आपको क्या क्या चाहिए होगा। इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ एन इक्विपमेंट, राइट? इक्विपमेंट के फॉर्म में हो सकता है वो, कोई सर्विस के फॉर्म में हो सकता है, या यू माइट नीड अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, राइट? बट आपके पास बिजनेस नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि इसको मैं मोनेटाइज कैसे करूँ, मैं इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करूँगा, right? So you might need a person who has all the business side of it, business skill set side of it, right? जिसके अंदर फाइनेंस भी हो सकता है, जिसके अंदर आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी हो सकती है, जिसमें अकाउंट्स, बैंकिंग, ये सब चीज़ें हो सकती है, राइट? सो ये सब चीज़ों के लिए यू माइट नीड अ रिसोर्स, अ पर्सन, राइट? दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ योर पार्टनर, आपका वो, आप उसको पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हो, या फिर आप उसको एम्प्लॉय कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन हायर अ पर्सन, ठीक है? उसमें हाउ यू कैन गो अबाउट इट, अभी प्रायोरिटी क्या है, राइट? बिकॉज हायरिंग जो है दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। आप ऐसे ही किसी को भी उठा के आप नहीं बोल सकते हो कि लेट मी डू बिजनेस विद दिस पर्सन, राइट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विजन कितना मैच होता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज डू टू पीपल हैव। सो वो सब हम जब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ प्लानिंग। Planning can involve a lot of discussions also. Discussions, for example, discussions, see, planning is not only कि आपने कुछ सोचा and planning हो गई, no. इसको हम बोलते हैं क्विकली एक्शन लेना, एंड यू कैन एंड अप बर्निंग योर मनी, जो कि हमें नहीं करना है, हमें उसमें से आउटपुट निकालना है। सो वी शुड हैव अ प्रॉपर प्लान, right? Now planning is you can do when you are offshore, if you have internet access. At times you can invest that time into researching about stuff, right? Or maybe if you can, if you're able to, you can talk to a person, or maybe you can get back and then start working on it once you can start meeting people and executing your strategy. अब प्लान होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, राइट? यू शुड नो कि बिजनेस ऐसा नहीं है कि एक साल में आप जीरो से हीरो बन जाओगे, right? At least 5 years is needed. So, like I sit with people who invest in startups. So when I talk to them, so they say कि 5 years तक अगर आपका कोई startup है, that's still at a very very initial stage. और बहुत सारे startups ऐसे हैं जो 5 साल के टाइम के बाद सस्टेन भी नहीं कर पाते, या तो उनका आइडिया फ्लॉप होने लग जाता है, या दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, दे आर नॉट टू फोकस्ड, एंड वो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, और मे बी उनकी टीम उनका साथ नहीं देती। सो यू नीड टू बी प्रॉपरली प्लान इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। अब इस प्लानिंग में आपकी फैमिली का भी रोल है। इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड कि जब आप ऑफ शोर हैं, राइट, तो यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, एंड व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस तो उसमें कोई टाइम की गारंटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है आप 6-7 घंटे ही सिर्फ लगाओ, हो सकता है किसी दिन आपको 2 घंटे भी देने पड़ रहे हैं, देने से भी काम चल रहा है, और किसी दिन आपको 10 घंटे भी देने हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन वट यू आर वर्किंग ऑन, राइट? तो आपकी फैमिली जो है उसको भी आपको सपोर्ट करना है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज योर प्लानिंग। So would you like to discuss anything in this stage of entrepreneurship? Anyone? कोई भी ऐसा पार्ट है जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। It's clear, ma'am. एनीथिंग? You have covered various points, so I have noted down. It's very clear. ओके, सो कमिंग फॉरवर्ड, सी, अब हमने बात करी प्लानिंग की, राइट? हमने बात करी विजन की। सो अब विजन में अगर आप इफ यू आर ऑन इट, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मे बी यू कैन हैव अ पेन एंड पेपर, और आप उसके ऊपर लिख सकते हैं व्हाट इज योर वाई, क्योंकि यार
डूइंग अ सेशन, सो आप अगर इस पूरे टाइम को अगर आप डेडिकेटेडली इस अपनी क्लैरिटी पे इन्वेस्ट करेंगे, सो इट्स नथिंग बेटर देन हैविंग अ पेपर एंड अ पेन, और इफ़ यू हैव, अगर आपके पास फ़ोन है तो आपके फ़ोन में नोट्स हैं, यू कैन यूज़ दैट एज वेल. So why आपका clear हो? Second step was your planning, which obviously takes time, right? You can work out each and every aspect of it maybe after the session. Now one thing is very important, वो है आपका टीम वर्क. अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है. हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की. अब इसको अगर हम इंडिया के बिजनेस एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखें, सो वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट, जिसमें एक इंसान जो है, मतलब एक बिजनेस ओनर जो है वो इंडिविजुअली वर्क करता है, उसका खुद का काम है, ठीक है, वो सोल आइडेंटिटी है, मतलब हिज बिजनेस एंड ही आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. इसमें वो लोगों को एम्प्लॉय भी कर सकता है, जैसे आप कह सकते हो जो भी दुकानदार हैं, ठीक है, जो भी किसी ना किसी तरह की दुकान ओन करते हैं या कोई भी उस शॉप पे कोई भी बिजनेस रन करते हैं, राइट, दोज पीपल आर सोल प्रोप्राइटरशिप. उसमें भी बहुत सारी तरह के लोग होते हैं. देन कम्स अ प्रोफेशनल, जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ CA, देर इज अ साइकोलॉजिस्ट, राइट, दीज पीपल, देर इज अ डॉक्टर, उनका एक अपना क्लिनिक है. So these people are what? Professionals, right? They are getting paid for their professional skills, right? अब जब हम बात करते हैं बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसके अंदर आपके 3 तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं. ईदर इट कुड बी प्रोडक्शन, राइट, कि आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, राइट, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस. अब फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन कवर्स जो हैं, आपके पास 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के फ़ोन कवर्स हैं, बट 100-100 रुपए वाले फ़ोन कवर भी मिलते हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है. आप उसको अमेज़न पे भी सेल कर सकते हैं, व्हाटएवर वे यू वांट टू सेल इट, बट द पॉइंट इज़ कि आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर हायरिंग लेबर टू डू समथिंग, राइट. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम क्या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं. Okay, if we think we don't want to get into manufacturing because it's too much of investment and too much of risk. So second इसमें aspect आता है trading का. Trading is really simple, wherein आप एक जगह से आप products लेते हैं बने बनाए and आप उसको ले जा करके टारगेट ऑडियंस को बेचते हैं. इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी हो सकती है आपके, फॉर एग्जांपल आपने KFC, डोमिनोज, ये सब आपको पता है. आप अगर आप फ्रेंचाइज इंडिया, बहुत इस तरह के आई वुड से फेयर्स लगते हैं जिसमें फ्रेंचाइजीज जो पीपल हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजीज लेने के बहुत सारे आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे आप अपनी इंक्वायरीज, रिसर्च सारा कुछ कर सकते हैं, राइट. नॉट ओनली फ्रेंचाइजीज, बट आप एक, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, राइट. तो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, आप बस एक जगह से सामान लेकर के आप सेल कर रहे हैं, आप एग्जीबिशंस कर सकते हैं, राइट. नाउ द थर्ड एस्पेक्ट इज सर्विस इंडस्ट्री, सर्विसिंग. अब इसमें क्या होता है कि आप कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. इट कुड बी क्लाइंट सर्विसिंग, इट कुड बी आपने एक मसाज पार्लर खोला है, आपने एक सलोन खोला है, इसमें कोई प्रोडक्ट, घर इंसान कोई घर पे प्रोडक्ट नहीं लेकर जा रहा, कोई चीज़ नहीं लेकर जा रहा टैंजिबल. सर्विस इज समथिंग इनटैंजिबल विच यू कैन ओनली फील, राइट. तो आप किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये कोई भी डिजिटल ऐप हो सकती है, राइट. इसको हम प्रोडक्ट में भी आ सकता है, ये सर्विस में भी आ सकता है, राइट. जिसमें आप किसी को एक ऐप है, लोग उसको यूज करके बेनिफिट उठा पा रहे हैं, राइट. अब इसमें एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, टीम वर्क. सी, आप एज एन इंडिविजुअल हो सकता है आप सेल्स में बहुत अच्छे हैं, बट आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, राइट. सो यू नीड समवन, कोई, लेकिन आपके पास हायरिंग स्किल्स नहीं, आपको ये नहीं पता हायर कैसे करें, आपको ये नहीं पता कि मैं अपने पॉलिसी मेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रोडक्ट की कैसे करूँ. तो एवरी पर्सन हैज सेपरेट स्किल सेट्स, राइट. अगर हम खुद सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस.
Maybe you are a very creative person, but you are not good with sales. राइट? आपने बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेसेस देखे होंगे जिसमें अगर फादर हैं, फादर के 2 बच्चे हैं, राइट? तो फादर एक एस्पेक्ट को फोकस कर रहे हैं, एक बच्चा एक एस्पेक्ट को फोकस कर रहा है, दूसरा बच्चा दूसरे एस्पेक्ट को फोकस कर रहा है, राइट? तो ये बात आपको जितना आप अर्ली अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आप समझेंगे, उतना आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा। बिकॉज़ होगा ये कि कभी आप इधर भागेंगे, कभी आप उधर भागेंगे। But when you work as a team, your goals become achievable, your vision becomes clear, and you can focus on the ideation part of it. And you can have team to execute, राइट? बिकॉज़ आपका जो प्रोफ़ेशन है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप 6 मंथ्स के लिए होंगे ही नहीं। तो कोई भी बिज़नेस ऐसा तो नहीं होता 6 महीने किया, फिर 6 महीने छुट्टी, फिर 6 महीने किया, 6 महीने छुट्टी। अनटिल अनलेस इट्स सम सॉर्ट ऑफ अ सीज़नल वर्क। जैसे गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों के कपड़े बना के आप बेच रहे हैं, सर्दियाँ हैं, तो आप सर्दियों के कपड़े बना के बेच रहे हैं, राइट? सो आप इस चीज़ को जितनी जल्दी समझेंगे, यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, यू विल एंड अप सेविंग योर टाइम एंड एनर्जी rather than wasting it, right? Are we clear on this? Are we Yes, clear yes, on this? yes, yes. Perfect. Any question, any discussion, it's most welcome. No, Anyone ma'am, wants no, to do ma'am. any? Okay. No, ma'am. ठीक है. So, entrepreneurship. So, one thing I would like to say is that entrepreneurship journey is not very simple, not like a straight line कि बस आपकी growth है, ऐसा नहीं होता है. The journey is because see, जब आप अकेले काम करते हैं ना, तो आपके अपने thoughts and emotions जो है ना, वो overpower करते हैं. समटाइम्स आप उतने ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, आप उतना फोकस्ड फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा मेरे आइडिया में उतना दम नहीं है। बट इफ़ यू विल हैव अ कंपेनियन वर्किंग विद यू, तो आपको पता है दैट आई यू हैव टू गेट गोइंग, कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? बीट यू हायर समवन, बीट यू हैव अ पार्टनर और व्हाट्सएवर। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब बात करते हैं रिस्क की, जो कि बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए, राइट? अब जब हम रिस्क की बात करते हैं, ठीक है? सी रिस्क जो है ना, हम मोस्टली ये सोचते हैं कि ये सिर्फ ना हमारा फाइनेंशियल, हम एक रिस्क ले रहे हैं, ठीक है? कि हम कुछ पैसा लगा रहे हैं। No. First of all, I want to tell you that risk is not only financial, it's about your time and energy as well. क्या होता है कि आपने सोचा आज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, बट आप उस पे स्टेक क्या लगा रहे हैं? आप अपना टाइम स्टेक पे लगा रहे हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, एंड यू थिंक ऑफ डूइंग अ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जाम्पल 5 years डाउन द लाइन सक्सेसफुल नहीं होता, so would you regretted all your life that मैंने इतना टाइम, इतना एनर्जी, अपना फोकस, सब कुछ छोड़ के मैंने इसको दिया, what am I getting in return? What did I get in return? Nothing, right? Because other person can still forgive you, but you can't forgive yourself because वो टाइम चला जाएगा, राइट? सो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज के लिए रिस्क ले रहे हैं वो कितना वर्थ है उसका। इज इट वर्थ इट, राइट? इज इट वर्थ इट, और यू आर जस्ट अ रिस्क टेकर कि बस आपने सोचा अरे करके देखते हैं, रिस्क तो लेना ही पड़ता है लाइफ में, डर के आगे जीता एंड ऑल दोज थिंग्स। what how what kind of a person are you a risk taker or are you not? अगर आपकी बहुत सारा पैसा, फॉर एग्जांपल एक इमेजिन करते हैं सिचुएशन, आप मरीन आप मतलब आप आपकी जो भी कंपनी है वो आपको 2 महीने का पैसा नहीं देती है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? वो आपको 2 महीने का पैसा नहीं देती है, तो 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं, तो आपको पैसा नहीं देती है, तो आपको क्या लगेगा? व्हाई एम आई नॉट गेटिंग मनी? मेरे तो इतने एक्सपेंसेस हैं, मैं कैसे मैनेज करूँ?
मेरे पैसे नहीं आए, ओ माय गॉड कैसे होगा, और आप उसका इतना 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 स्ट्रेस ले लेते हैं। ऑल्दो आपके पास बहुत सारी सेविंग है, बट स्टिल यू टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो इसका एक ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है जिसमें आपको पता है आपकी फिक्स्ड इनकम आनी ही आनी है एज एज अ रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, राइट, यू हैव टू गेट अ रिटर्न, लेकिन फिर भी वो नहीं आ पाती है, राइट। तो जिसमें आपको पता है कि वो आएगी इन फ्यूचर, राइट, बट वो अभी नहीं आ पा रही है। इस और आपने आपको हमेशा वो पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर अब हम बिजनेस की बात करें तो हो सकता है आज जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक आपको कुछ भी रिटर्न ना दे। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री में जाओ देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। यू विल ओनली बी एबल टू सस्टेन इफ यू आर बेस्ट आउट ऑफ द लॉट, राइट। तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर। और मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपने किसी भी चीज पे 1 लाख रुपए लगाया, सो आई यू ओके अगर वो 1 लाख रुपए मिट्टी हो जाए, यू डोंट गेट एनीथिंग इन रिजल्ट, आई यू ओके विद दैट, आई यू ओके। नहीं मैम, 1 लाख रुपए चले जाएंगे तो नुकसान तो होगा ही। देखा, 1 लाख भी जो एक अमाउंट है जो कि बिजनेस के व्यू में अगर देखा जाए, इट्स नॉट अ ह्यूज मनी। लोग 10-10, 20-20 लाख भी लगाते हैं, राइट, करोड़ भी लगाते हैं, करोड़ों भी लगाते हैं। लेकिन अगर मैं 1 लाख की ही बात करूँ, दैट मीन्स वो 1 लाख की कितनी वैल्यू है आपके लिए। और अगर वो नहीं आपको कुछ रिटर्न दे पाता, तो क्या आप अगला 1 लाख लगाएंगे उसको और ज्यादा, विल यू बी एबल टू टेक दैट रिस्क कि उस 1 लाख को बचाने के लिए कि यार 1 लाख लगा दिया, यार इतनी मेहनत कर ली, थोड़ा और लगा के देखते हैं। क्या आप 1 लाख और लगा पाएंगे उसको सस्टेन करने के लिए? That depends on the situation. In what kind एग्जैक्टली, of a situation we are in, we have to एग्जैक्टली, utilize our knowledge and the gut feeling. Because if there is a trap, then you won't go ahead and putting another lakh. But if you feel that yes, still there is a chance, even 1% chance, you will go ahead. But that has to be logical in nature. exactly. Very good in point. But here I would like to put one thing. Apart from logics, I'll tell you something. Like, I come from business family, so if I tell you कि business में क्या चीज बोली जाती है, अगर मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस की भी बात करूं या एज अ बिजनेस कोचिंग में भी जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है विद माय क्लाइंट्स एंड व्हाट इज नीडेड इज इन रिस्पेक्ट टू रिस्क, वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में अगर 20 लाख रुपए आपने लगाए हैं, राइट, इसमें आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी है, इसमें आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी है। और फिक्स्ड कॉस्ट एज इन आपने कोई मशीनरी ली, या ऑपरेशनल कॉस्ट है मतलब आपने जो भी लेबर हायर करी है, रॉ मटेरियल है, ऑल दोज थिंग्स, राइट। इसके साथ अगर आपने 20 लाख रुपए लगाए हैं तो आपके पास कम से कम 30 लाख का आपके पास बैकअप होना चाहिए। 30 लाख नहीं तो 50-50, 20 लाख का बैकअप होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कुछ पैसा लिया और बस लगा दिया, अगर वो रिटर्न नहीं आया, बिकॉज कई चीजें चलने में, मार्केट में होने में, कस्टमर्स आने में, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड देन योर प्रोडक्ट शुड बी रियली रियली गुड, राइट। सो आने में टाइम लगता है। सो दिस इज व्हाट इज सेड इन बिजनेस फैमिलीज कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगा दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास एटलीस्ट 2 लाख रुपए बैकअप में होने चाहिए हैं जो आपकी बिजनेस को आगे सस्टेन करने में हेल्प करेगा, राइट। आगे मे बी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, देन ऑब्वियसली यू विल यूज योर नॉलेज, योर लॉजिक्स, योर इंट्यूशन एंड एवरीथिंग कि क्या ये सही है, मार्केट की सिचुएशन अभी है नहीं है, ऑल दोज थिंग्स, क्या ये वर्क करेगा नहीं करेगा। बट लेट मी टेल यू, सी आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस की ना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि एक इंसान अपने इमोशंस से भी डिसीजन ले सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ भी लाइफ में काम करते हैं ना, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम टेलिंग यू, वो हम बेस्ड ऑन इमोशंस ही करते हैं। और लॉजिक जो है वो बस उसको हमारे प्रैक्टिकल माइंड को एक बैक देता है, राइट। आर लॉजिक्स ओनली बैकअप आर इमोशंस, राइट। सो मेन जो हमारे डिसीजन है वो अपने इमोशन से लेते हैं, राइट। सो
क्यों होते हैं, सी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज आई एम अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर ऑल्सो। तो एनएलपी में ना एक टेक्निक होती है, राइट? उसमें क्या होता है दैट वी डू अ स्टडी, जिस वी डू अ टेक्निक जिसको बोलते हैं हम वॉल्ट डिज्नी टेक्निक, राइट? इसमें क्या होता है कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं दैट वी आर, फॉर एग्जांपल, वन पर्सन इज अ ड्रीमर, ठीक है, जो बहुत बड़ा करना चाहता है, वो इन्वेस्ट करता है विद लॉट ऑफ होप। वन पर्सन इज अ क्रिटिक, ठीक है। क्रिटिक इज जो हर चीज में कमियां निकालता है। अगर ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हो पाया तो, व्हाट विल हैपन, राइट? तो एक होता है ड्रीमर, एक होता है क्रिटिक, और एक होता है रियलिस्ट, ठीक है। अब रियलिस्ट माइंडसेट क्या होता है, ये ड्रीमर को और क्रिटिक को, दोनों को बैलेंस आउट करता है। अब कमाल की बात ये है कि ये तीनों हमारे अंदर ही हैं। हम थोड़ा सा ड्रीम करते हैं, हमारा क्रिटिक जाग जाता है। हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मार्केट में तो इतना कंपटीशन है, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, राइट? देन अब इसमें एक सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है, लाइक इट्स अ ह्यूज, मतलब इट्स अ प्रॉपर एक्टिविटी विच वी मेक आवर क्लाइंट्स डू, जो हम अभी नहीं कर सकते बिकॉज लैक ऑफ टाइम। सो इसमें क्या होता है कि हम पहले अपने ड्रीमर माइंड को कंप्लीटली एक्टिव करते हैं, ऑल आर ड्रीम्स, नो लॉजिक्स इन्वॉल्व्ड, सब लिखते हैं। देन वी डू आर ड्रीम, आर क्रिटिक पार्ट ऑफ इट, कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो क्यों नहीं होगा, ऑल दोज थिंग्स वी राइट इट डाउन, राइट? लेकिन थर्ड जो है हमारा रियलिस्ट, राइट, वो नहीं वर्क कर पाता। रीजन इस चीज का ये है, वो नहीं वर्क कर पाता बिकॉज हम दोनों में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियलिस्ट जो है वो एक सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसके पास जा ही नहीं पाते। इसको हम ऐसे इमेजिन करते हैं, जैसे एक एक फादर है और उसके दो बेटे हैं। एक बेटा जो है उसके पास एक बहुत ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया है, राइट? वो 100% कॉन्फिडेंट है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। और फादर जो है, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, नहीं हुआ तो, एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स, राइट? राइट? इसके बाद क्या होता है, एक जो दूसरा भाई है वो हार्वर्ड से बिजनेस पढ़ के आया है, और वो कहता है कि ठीक है, ये आइडिया बहुत बढ़िया है, इट्स कम्प्लीटली डूएबल। वो फादर की बात सुनता है, ऑल दीज चैलेंजेस आर प्रिटी एड्रेसेबल, हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसका ये सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन निकालता है, वर्कआउट करता है, प्लान बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, जिससे सब कुछ केटर हो सके। सो दिस इज हाउ वी नीड टू वर्क अराउंड रिस्क। एनी डाउट, एनीथिंग you want to ask? No, ma'am. Thank you. It's like it was a very good explanation. The dreamer mindset, critic mindset, and the realistic mindset. Thank you, ma'am. I hope you implement it. You're able to implement it really well, especially in your business field, जो भी start करना चाह रहे हैं. Okay, moving forward. अब इसमें बात आती है लीडरशिप की। नाउ अब हमें खुद से, जब भी हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सी लीडरशिप, हो सकता है आप अभी एक वन मैन आर्मी है, आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी लीडरशिप स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स भी खुद कर रहे हैं, राइट? आप सब कुछ खुद कर रहे हैं, राइट? अब आपको अगर सेल करनी है, फॉर एग्जांपल आप बी टू बी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रहे। फॉर एग्जांपल अभी मर्चेंट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट की बात हो रही थी, हो सकता है आप डायरेक्ट मर्चेंट नेवी के कस्टमर्स को नहीं बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं उस मर्चेंट को, राइट? वो कंपनी को आप बेच रहे हैं, तो आप बी टू बी कर रहे हैं। अब आपके अंदर वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नेगोशिएशन, लीडरशिप, कि आप उनको फेस करके आप उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें, राइट? एज अ लीडर, यू नो, यू शुड बी दैट, यू शुड हैव दैट ऑरा, जो हम ट्रेडिशनल लीडरशिप की बात करते हैं। एंड खुद को भी आज तो लगेगा बहुत मोटिवेटेड, हम बहुत काम करें, इससे भी डिस्कस कर लिया, उससे भी डिस्कस कर लिया, एंड टुमारो यू आर नॉट दैट मोटिवेटेड, तो आप थोड़ा सा उसको लिंगर ऑन करते हैं। ठीक है, मुझे मार्केट जाके, फॉर एग्जांपल करोल बाग मार्केट में जाके मुझे रिसर्च करना है,
यार आज नहीं मैं जा पाऊँगा, आज ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, यार आज ना ये फैमिली गेट टुगेदर है, अरे आज ना मैं ज़रा आई वाज़ ऑक्यूपाइड समवेयर। तो मतलब वी हैव टू बी रियली लाइक एज़ अ लीडर वो पुश करता है अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं। Similarly, we have to push ourselves. So leadership quality in any business is irrespective of you have a team working under you or not, right? Because when you start your business, you are representing your business in front of your customers, in front of people who you are procuring your things with, right? Are you creating that aura that people can trust you in terms of money, in terms of your product? और देखो हर चीज़ में कंपटीशन है, राइट? एवरीथिंग हैज़ कंपटीशन। ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो आज से पहले कभी सोचा ना गया हो या उसके ऊपर कभी एक्शन ना हुआ। लेकिन हमें ये देखना है कि कोई थर्ड पर्सन जो है जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे साथ क्यों बिजनेस करना चाहेगा? जब उसके पास 10 और लोग हैं वो हमारे पास क्यों आएगा? व्हाट आर वी ऑफरिंग? हम उसको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं बहुत ही चीप प्राइस पे, या तो ये पॉसिबल है, या फिर ये हो सकता है कि हम उसको लॉन्ग टर्म ट्रेड में बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे देते हैं, उसको बहुत अच्छी कमीशन दे देते हैं, और एल्स वी हैव दैट काइंड ऑफ ऑरा दैट पीपल वांट टू डू बिजनेस विद अस, right? So mix of all three is needed. So leadership quality is really important when you start your entrepreneurship journey. इसके अंदर भी बहुत elements हैं, बहुत case studies हैं, बहुत examples हैं जो for example Hero Cycles के founder हैं. I have read his book, उनकी biography लिखी गई है उनके entrepreneurship journey के बारे में. I've read that. I would like to share few instances also with you, but I think um, uh, if we save time in the end, I will definitely share that with you. Right? Okay. Anything you want to add on? Anything you want to ask? Or maybe even if you don't agree with me in this, you can also tell that as well. Every time does the push leadership works? Like I have come across a concept of like when you said you have to create an trust and create an aura. But once you have created that trust and aura, then the I would say this thing changes, that the pushing part changes. It should come to pull leadership, something like that, where the people are driven towards that vision and your goal, your team. एग्जैक्टली सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें मोटिवेशन का एक पॉइंट रहता है। मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ही जो आपकी अंदर से आए, आपको किसी बाहर से किसी को आपको पुश करने की जरूरत नहीं है, राइट? और एक होती है एक्सट्रिंसिक कि जो आप किसी ना किसी मोटिव के लिए करते हो, राइट? तो सी पुल लीडरशिप वर्क्स जहाँ पर लोग जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं वो अपने काम को बहुत प्यार करते हैं, दे वांट टू डू बेस्ट इन दैट वर्क, और आपका रोल वहाँ पे पुश का है ही नहीं। यू आर मोर लाइक अ मेंटर, you are guiding them to do better and better and better. You're just a guide. एक होता है ना जैसे आप आगे बढ़ो, you have my back, राइट? दैट थिंग। एक होता है कि आपको पुश करना है, नो। सो पुश, व्हेन आई मेंट पुश, इट वाज नॉट इन नेगेटिव सेंस, राइट? कि हमें पुश करना है, नॉट इन दैट सेंस, बट यस, पुश मीन्स कि push means maybe showing the direction, or maybe leading in front, giving them direction, being that headlight of the car, right? So it can be anything. So there are various leadership styles, right? लेकिन जो भी latest जो trend है, that is a pull leadership. You cannot make your employees work like anything. जैसे पहले एक हम सोचते थे ना, traditional leaders जो चलते थे, that trend doesn't work anymore, right? So it's more like pull leadership in all the MNCs, in all the small businesses, anywhere you see. Anything else you want to add on? Good afternoon, Prerna. Good Just afternoon. wanted to, yeah, just wanted to ask. I mean, this is what we are. Since I joined late, I apologize. So this what we are discussing is about entrepreneurship, and if we start on that journey, I mean, but taking a guidance towards leadership, if we go
And if we try and implement that while we are, working as marine engineers, as head of our team, then in current scenarios or in current times, it becomes really difficult, because it becomes difficult to manage the people. The people who are currently, coming in the team and all, they are of a completely different mindset from what we were. Like, I mean, since Kim and I are hardly about a year apart and two apart actually, and then it's a situation is that when we were studying or when we took up this career, we had only, like a marine engineer. So our focus used to be like, if this doesn't work out, then we're screwed. But in current generation, people are not scared. I mean, so what the juniors are, they're not, how would I say, they're not that motivated towards this stream and towards the goal that we are working for, or towards the responsibility that we actually expect from them. And that is what, is creating a difficulty for us to give us that guiding light and all. It's not like that we are not doing, but then it becomes really difficult to maneuver with the young people who are coming into the stream. Very important point. See, if I talk about, you, or maybe when you joined, हो सकता है कि हम इस प्रोफेशन में आए बिकॉज ऑफ आवर नीड ऑल्सो, कि नहीं, आई मीन एटलीस्ट वी नो कि अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अर्न, एंड आई एम एन इंजीनियर, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एक वो फियर, आउट ऑफ फियर जो है ना, वो हम करते थे, वर्क करते थे। बट येस, वेरी ट्रू, आजकल की जो जनरेशन है वो अपनी मस्ती में चलती है, उनको पता है, आजकल वो पॉडकास्ट सुन सुन के इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं, आई वुड से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट, नथिंग इज गोना एंड, और आई नो इट ऑल एटीट्यूड जो है उनके अंदर, या फिर नहीं हुआ तो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर, आई विल ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स, इट्स ओके, ये सब जो है इट्स गुड कि उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, उनके अंदर वो फियरलेसनेस आई है। येस, बट जहाँ तक हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो ऑब्वियसली अगर आपके सबऑर्डिनेट्स में वो फोकस नहीं है, तो उनको एक डायरेक्शन देना, उनके लिए गाइडिंग लाइट बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। सी इट नाउ, इसका जो सॉल्यूशन एस्पेक्ट है वो ये है कि अ, हो सकता है इनिशियली ये बहुत चैलेंजिंग लगे कि आप उनको पुश करें, बिकॉज़ सी वो अभी-अभी आए हैं, दे हैव नॉट बीन इनटू दैट एनवायरनमेंट, दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ दे कैन एक्सपेक्ट। उनके लिए अभी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि वो बन गए, वो एम्प्लॉयी हो गए, उनको जॉब मिल गई, वाओ! दे आर रियली हैप्पी इन दैट, आई एम अर्निंग सो मच मनी, ओह माय गॉड! मैं तो बहुत पार्टी करूँगा, ये करूँगा, सो व्हाटएवर देयर माइंडसेट इज़, राइट? द पॉइंट इज़ कि लेकिन जब वो सीरियस होते हैं, जब वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी आती है, दैट टेक्स अ लिटिल टाइम एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम पीपल गेट मैच्योर अर्ली, सम पीपल टेक टाइम। तो हो सकता है अभी उनको खुशी ज़्यादा है, मोर देन गेटिंग फोकस्ड एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा उनके लिए वो वर्बल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, वर्बल, which means कि आपको उनको बोल बोल के, like whenever you are addressing them or dealing with them, तो आपको ये बोलना है that you guys are doing pretty well, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, you really want them to succeed in this career, this is how they can do, this is how, वो सब चीज़ें। तो उनके लिए एक आगे की जर्नी, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ आपको उनको लेकर जाना है, ठीक है? सो वो करने के लिए आपको एक वर्बल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, बिकॉज़ अभी वो बहुत खुश हैं कि ओके बहुत बढ़िया जॉब लग गई है, और कोई भी उनका फ्रेंड जो है, जो इंजीनियरिंग करके भी बहुत कम-कम सैलरी अर्न कर रहा है, और आप यहाँ आ गए, वाओ! फैमिली इज़ इम्प्रेस्ड, फ्रेंड्स के सामने हम बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं, मेबी इफ वी हैव अ गर्लफ्रेंड और समथिंग, राइट? तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ग्रेजुअली आपको वो एक एक होता है ना, जैसे छोटे बच्चे को पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, राइट? फिर जब उसको समझ आने लग जाता है, ओह माय गॉड! मैं तो 10th में आ गया, ये मेरे करियर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं 12th में आ गया, ये मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो अपने आप सीरियस हो जाते हैं, अपने आप पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं।
राइट? तो वही चीज़ आपको करनी है। वर्बली आपने उनको एक पुश देना है, राइट? उनको अप्रिशिएट करना है, उनको डायरेक्शन देनी है, उनके वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट और वो वर्बल एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करना है। ओके? Thank you, Prerna. Anyone else would like to ask anything in this topic? Okay, Yes, let's ma'am. move I forward. have, yeah, I have one question. Yeah, yeah. मैम आपने तो बोला कि बहुत लाइफ की बैलेंस अप्रोच लेनी चाहिए कि Right. अगर बैलेंस अप्रोच लेता तो मैं कभी बिजनेस ही ना कर पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप प्रोज एंड कॉन्स की जब शीट बनाते हैं कभी भी किसी भी चीज़ की, एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर फॉर लास्ट ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ, मोर देन अ डिकेड, कॉलेज से ही शायद जर्नी मेरी आधी स्टार्ट हो गई थी, तो वो लॉजिक तो कभी कहता ही नहीं है कि आप बिजनेस करो। लॉजिक हमेशा ये कहता है कि, और पेरेंट्स का लॉजिक तो एकदम ही नहीं कहता। पेरेंट्स मेरे आज ये बोलते हैं, इतना पढ़े हो तुम, क्या तुम्हें कोई Mm-hmm. अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती? अभी भी नो, Mm. इट इज लाइक 10-12 years ऑफ डूइंग बिजनेस। मेरी मम्मी 5 साल पहले तक किसी को बता नहीं पाती थी कि मैं अब मर्चेंट नेवी में नहीं हूँ। उससे थोड़ा सा ना, क्या हुआ कि आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ फेम इन 2020। बिफोर दैट, उसके पहले तक तो मम्मी पापा भी नहीं बता पाते थे कि मैंने, मम्मी पापा सबसे बोलते थे शिप पे है, क्योंकि मैं बहुत कम जाता था। और वो लॉजिक तो कभी तो मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी पर्सनल, सबके लिए कुछ भी हो सकता है, कई काफी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, जबकि आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। सो एंड इट इज वेरी वेरी हार्ड फॉर, वेरी वेरी हार्ड फॉर पीपल फ्रॉम अवर बैकग्राउंड, जहाँ पे आप मर्चेंट नेवी की लाइफ छोड़ के आप बिजनेस करने आते हो, क्योंकि उस क्वांटा का पैसा कमाने में बिजनेस में अभी जितने मेरे बैचमेट, काफी बैचमेट भी हैं, जूनियर भी हैं, और मैं तो आपका पैसा मैं बता रहा हूँ कि सारा री इन्वेस्ट होता है बिजनेस में। ऑल द मनी गोज इन टू री इन्वेस्टमेंट। कभी एक समय हम लोग 1 करोड़ महीने के लॉस पे थे, आज 20-25 लाख महीने के लॉस में है। बट लॉट ऑफ मनी गोज इन टू री इन्वेस्टमेंट, आप फंड रेज करते हो इन्वेस्टर से, एंड अगर लॉजिकल होता डिसीजन तो कभी बिजनेस ना होता। सो ऑन फर्स्ट, Exactly. As I ऑन say, it's फर्स्ट, always emotional front क्योंकि आप करना चाहते हो, this makes you happy, right? आपको वो करके खुशी मिलती है, तो you do it, right? And I mean, क्योंकि why not? अगर आपकी जो सैलरी है उससे अगर आप satisfy नहीं हो, तो वो तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। सो आप क्यों करोगे? What's the other reason if not money? The reason is it makes you happy, as simple as that. तो वही विजन वाली बात, वही वाई वाली बात, विच इज़ कीपिंग यू गोइंग फ्रॉम लास्ट डिकेड। आपको एक 10 साल हो गए एक बिजनेस करते हुए, विच इज़ अ ग्रेट जर्नी। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि इतना पैशन होना चाहिए है आपके बिजनेस में, आपका आइडिया में, आपकी सोच में, आपकी कन्विक्शन में। आप यू शुड हैव कंसिस्टेंसी, दिस विल कम आउट ऑफ पैशन, राइट? So I think अगर इतनी अच्छी जर्नी, मतलब it's not always about making money and being in loss, it's about making you feel happy. And obviously अगर so what I would always suggest is कि आप कोई भी चीज़ don't put all your balls in one court। आप अगर कंप्लीटली कोई भी जॉब या कोई भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम एंड इफ़ यू हैव डिपेंडेंट्स ऑन यू, मतलब आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेंसेस गोइंग अराउंड, तो आप कभी भी वो रिस्क मत लीजिए कि सब कुछ छोड़ के एंड यू गो कम्प्लीटली इनटू योर बिजनेस, राइट? अगर आप बहुत ही एक इंडिविजुअल होते और वो सारे, बिकॉज व्हाट इफ इट डजंट वर्क? आई डोंट वांट योर लाइफ टू बी अ क्वेश्चन मार्क। एंड व्हाट इफ you don't want to do a business anymore? Where will you go? Will this हमारी option हमारी कम्युनिटी में, इफ इट डजंट वर्क वी हैव बैचमेट्स हु आर सेलिंग। Mhm. तो Right. तब मैं बता रहा हूँ मैम, इट इज वेरी पर्सनल। कई बार क्या होता है ना कि अब तो क्या हो गया कि मंथ एंड में मैं फोन भी करता हूँ तो लोग, काफी लोग बोलते जरूर साले की सैलरी शॉर्ट पड़ रही होगी, तभी हम याद आए उसको। तो दैट इज, बट एंड कई बार करना क्या होता दिल की बात मत बताओ बेटा।
हाँ, अरे तो आई Mhm. गेस दैट्स सेशन तो उसी का है ना कि दिल की बात सब लोग बता सकें अपनी क्लोज नेटवर्क में। सो एंड दैट Mhm. इज एक एड्रेनलिन रश A होता है। plus point. A एंड जैसे plus जैसे point. आपकी एज बढ़ती जाती है ना, प्लस पॉइंट Mhm. ये है कि कंबाइंड ऑल टुगेदर माय कंपनी इज वैल्यूड एट विल बी वैल्यूड ऑन 1 अप्रैल 400 करोड़। सो दैट इज द प्लस पॉइंट। और शायद अगर मैं जॉब कर रहा था तो मैं 2 करोड़ कमा रहा होता साल का। सो Mm. ये प्लस पॉइंट है, इसको मैं डिलीट कर Mm. दूंगा क्योंकि अभी आउट नहीं है। हाँ। Mhm. एंड माइनस पॉइंट यही है कि हम लॉस मेकिंग कंपनी है, हम लॉस मेकिंग ही रहेंगे काफी सालों तक। एंड क्योंकि Mm. ग्रोथ में पैसा लगाते हैं, इंडिया वाले थोड़ा समझते नहीं है। वो Mm. सोचते हैं पैसा लॉस हो गया, बट वही है कि भगवान तो दिया ही थे पैसा। Mm. True. Very true. Yeah, so I think that needs to be understood. The vision should match with your investors and you as a business owner. So let's move forward. So the last topic of the whole topic is adaptability. अब व्हाट डज इट मीन? जैसे कि आपने अभी अपना एग्जांपल शेयर किया, अपनी जर्नी शेयर करी, तो अडैप्टेबिलिटी इज कि देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ हो सकता है कि इंटरनेशनली कुछ चीज़ें ही चेंज हो गई, या नेशनली आपके जो भी आपका काम आप करते हैं वो नेशनल बेसिस पे कुछ ऐसी पॉलिसी आ गई, कुछ ऐसा आ गया कि सब कुछ चेंज हो गया। So, for entrepreneurship, if you are a flexible individual, you can adapt to situations really well. For example, ज़्यादा पैसा है तो भी काम चलाएंगे, कम पैसा है तो भी काम चलाएंगे in terms of money, but in terms of doing advancements. So, adaptability is not just adjusting to the situation जो है, it is also about making those required changes, right? Which keeps you going. So, with this, thank you so much, everyone. I really enjoyed the session. I hope you people enjoyed it too. मैम थोड़ा और लगेगा, सेशन का टॉपिक कुछ और था पर थोड़ा डाइवर्ट हो गया, तो विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट वीक ऑल्सो। क्योंकि टॉपिक ये था कि एंटरप्रेन्योर्स और मरीन इंजीनियर्स जो लोग मिक्स डैबल कर रहे हैं, फॉर समवन लाइक मिस्टर आनंद जो सेलिंग भी करते हैं एंड इज वेरी एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस। तो हाउ डज अ पर्सन लाइक हिम हैंडल्स रिलेशनशिप्स जहाँ तक आती है, एंड क्योंकि दैट इज द सबका ना एक स्ट्रेस पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग। We're having a discussing about relationships because, as far as I remember, we did a really in-depth discussions twice, and क्योंकि हम relationships और हम इस तरह का logical topic जो entrepreneurship से related है, we can't actually do both of these things together because relationships is an emotional side of it. उसकी अलग स्ट्रैटेजीज हैं, और जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, सो आई जस्ट डिडंट वांटेड टू टच बोथ द थिंग्स एंड नॉट गिव जस्टिस टू बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स बिकॉज बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट। और चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, उसमें अगर रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं कैसे मैनेज करता है, तो वो सेशन सिर्फ रिलेशनशिप्स को जाता। How to, what is needed to do in your entrepreneurship journey and your business, that would not be highlighted at all. थैंक यू मैम, थैंक्स वंस अ लॉट, एंड विल हैव अ स्पेसिफिक सेशन ऑन रिलेशनशिप्स जहां हम Yeah. प्यार व्यार की बातें करेंगे और आनंद सर खुश होते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक Okay. यू। Thank you. Thank Thank you, you so ma'am. much. Have a wonderful day. Take care. Thank Bye you, ma'am. bye. Thank you, sir. Thank you.